Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 26th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So try to answer the questions before I provide you the correct answers. Certain students are actively participating in such sessions, but there are other students which are lenient in such kind of activities. This will be beneficial for those who are participating actively, and of course not beneficial and harmful for those who are not participating in such kind of daily activities, because you cannot complete the syllabus of general knowledge or anything in one day or 1 week or 1 month. So such kind of sessions make you uh, help help you to revise every day and to grasp some extra knowledge, facts, or points every day. So just start from the question number 1. Which article of the Indian Constitution provides that the state shall do no discrimination on the grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them? तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट और यहाँ से कुछ जजमेंट्स के रिगार्डिंग में। तो ऑफ कोर्स इट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी कैंडिडेट या सिटीजन के अमोंग, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो या एनी ऑफ देम, कोई भी इनमें से हो। Yesterday when we were discussing about the Himachal Pradesh civil services rules, where the question was related to provide the child care leave or the paternity या maternity leaves. So in such cases, Article 15 is applicable. Article 12 defines the state. It is regarding the definition of the state under the Constitution of India. Where Article 16 and 18, you can reply for those. I have provided you the answer, the relevant points regarding the Article 15 and 12. So now you have to reply that what is the subject matter of Article 18 of the Indian Constitution under the fundamental rights, and also for the Article 16. Both and all the 4 articles here are mentioned. All are very important for your various examinations. So just have a look on these important articles. Question number 2. A Pulicat Lake Bird Sanctuary is located in. The Pulicat Lake Bird Sanctuary hai, it was in news due to the government of a state planning to denotify some regions or some areas of this lake, that is bird sanctuary, and that's why it's in limelight. So you have to find out the correct state. Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu. The correct answer is Tamil Nadu. This lake is located on the border areas of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So the correct answer is Tamil Nadu. Pulicat Lake Bird Sanctuary. The largest brackish water lake in India. Which one is the largest brackish water lake in India? You can understand that what is the meaning of brackish water lake. So such kind of lakes are also called lagoons. Lagoons. Suppose karo this is the landmass area, this is ocean. When some water enters to this side and there becomes a lake, in such conditions, these kind of lakes are called brackish water lakes or lagoon. So largest brackish water lake in India is, which one is? Lake Chilka in Odisha, Lake Chilka in West Bengal, or Lake Pulicat in Tamil Nadu, या Lake Pitham in Uttar Pradesh. Actually, in two these options, the Lake Chilka has been asked in terms of state. So actually, the Lake Chilka is in Odisha. So the correct option is Lake Chilka, but here the option included West Bengal. So this option is incorrect. Although Lake Chilka is a correct answer, but it should be correctly matched with Odisha. Lake Pulicat, it is located in Tamil Nadu and Andhra Pradesh region. Lake Keetam is a lake, very important lake in recent
news because it has been mentioned as a Ramsar site, that is wetland site, and it is located near Agra in the district of Agra. So it is also important because recently it was declared as the Ramsar site in India. Next, we are talking about a lake. This lake runs parallel to the Bay of Bengal and has a sandbar, making it a lagoon of its own kind. Sriharikota Island separates it from Bay of Bengal. Here we are talking about which lake? It's Dal Lake, Lake Keecham, Lake Pulicat or Lake Chilika. Dal Lake, this is located in J&K. So this is incorrect option. Lake Keecham, just we discussed about it. It is located in UP. So there is no way for Sriharikota Island in UP because there is no boundary of Uttar Pradesh state which are sharing with the ocean or any water body such kind of. Next is Lake Pulicat or Lake Chilka. Actually, this is where we are talking about Lake Pulicat because Sriharikota Island is located near Lake Pulicat, or actually it is in Lake Pulicat. So correct answer is C. Lake Chilka, it is in Odisha. So now we are going to another question. This question is question number 5. This island is also known as Wheeler Island. When we are talking about the Sriharikota Island, then we should also know some basic points about this island also, because this island is also very famous in India. It is an island of the coast of Odisha, India, approximately 150 kilometers east of the state capital of Bhubaneswar. It means this island is located in the sovereignty jurisdiction of Odisha state, which one is the correct option. So we have to find out the correct location regarding the Wheeler Island or its another name. Its another name is Dr. Abdul Kalam Island, Ross Island, Netaji Subhash Chandra Bose Island, or Andaman Island. So guys, the correct answer is Dr. Abdul Kalam Island, because recently in last years the government of India declared the name of this Wheeler Island as the Abdul Kalam Island. So both are same thing, just the name has been changed. So Wheeler Island is now Abdul Kalam Island. When it comes to the question of Ross Island and Netaji Subhash Chandra Bose Island, then you should be also aware about this basic fact, that now the Ross Island is known as Netaji Subhash Chandra Bose Island. So both are important. Next is Andaman Island. No, there is no another name of this Andaman Island as such. Question number 6. What is the full form of ASEAN? Yesterday we also discussed about the ASEAN Future Forum. So you have to also be aware about ASEAN. What is ASEAN? Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Southeast, Alliance for Southeast, or Association of Southeast Asia Nations. But correct option is Asian Nations. So the correct option is a Association of Southeast Asian Nations. It's a intergovernmental organization including 10 members from Southeast Asia. For example, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Indonesia. These are the member states of ASEAN. The next question is question number 7. Bangkok Declaration is associated with the foundation of which organization? So here we are talking about the Bangkok Declaration. You know Bangkok, where is in Bangkok? In which country? Just write your answer in the comment box that where is Bangkok. So Bangkok Declaration of course is associated with the establishment of or the foundation of ASEAN, Association for Southeast Asian Nations. So this was the declaration through which the governments of various countries founded the ASEAN. The next question is, the headquarters of ASEAN is located in. Where are the headquarters of ASEAN? Cambodia, Vietnam, Jakarta, Laos. The correct answer is Jakarta. That is located in Indonesia. So Jakarta is in Indonesia. On this island, the headquarters of ASEAN are located. One more question I can have share with you. Find out the headquarters of SCO, Shanghai Cooperation Organization, and also the headquarters of ASEAN Development Bank and
द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? ठीक है, ये आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द मियावाकी टेक्निक. This technique was recently in news because the government of India is going to have some agreement or treaty with Israel. Okay, so you have to find out that what is the correct option regarding this Miyawaki technique. It is in news, it is associated with floriculture, agriculture, urban reforestation या blue economy. The correct answer is urban reforestation. So Miyawaki technique, it is a technique for reforestation which was developed by a Japanese botanist, that was Miyawaki. So this is a technique of reforestation. Within few years, we can develop a forest with fast speed. The next question, the last question for today, which one is the largest freshwater lake in India? India में largest freshwater lake कहाँ है? Because today we have multiple questions regarding the lakes. So when we talk about the Lake Chilka, Lake Pulicat, both are the saline water lakes, but we have to also know that which one is the largest freshwater lake in India. So of course this is Vular Lake, that is located in Jammu and Kashmir. Lake Titicaca, it's not located in India. You have to find its location. Find out its location. कि Lake जो Titicaca है वो कहाँ पे है. Now we are going to start the important news for today. The first one is Modi thanks Italian PM for invitation to G7 meeting. तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये इनविटेशन नहीं, इम्पोर्टेंट हो जाता है G7 की मीटिंग और इंडिया को इनवाइट किया है इटालियन पीएम ने. यू नो कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट ड्यू टू गुड रिलेशंस विद इटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैज इनवाइटेड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द G7 मीटिंग एज ए स्पेशल गेस्ट. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने उनको थैंक्स बोला. क्या नाम है उनका? जॉर्जिया मेलोनी. अगर आपको ध्यान होगा तो जॉर्जिया मेलोनी के साथ में जब सेल्फी आई थी मोदी साहब की तो बहुत सारे मीम्स उस पर बने थे. ठीक है, तो ये वही जॉर्जिया मेलोनी है और G7 की मीटिंग के लिए उन्होंने इनवाइट किया है. अब यहाँ पर इंडिया के पास में अभी कुछ और भी जो है इन्विटेशंस हैं. हालांकि अब यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये जो मीटिंग है होने वाली कहाँ पर है? पुगलिया में. पुगलिया कहाँ है? इटली में. ठीक है, तो G7 की समिट है, आउटरीच सेशन यहाँ पर ये होने वाला है. कहाँ पर? इटली में. और क्या होने वाला है? इंडिया को और एक इन्विटेशन मिला है, वो मिला है यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस में. सो सच काइंड ऑफ इन्विटेशंस जो इंडिकेट करते हैं, प्रूव करते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पर स्टेटस है वो इंक्रीज हो रहा है. ये देखो यूक्रेन कहाँ? यूरोप में. और फाइट किसके बीच में है? रसिया और यूक्रेन. लेकिन दोनों की जब पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि उनका युद्ध का कैसे जो है मींस एक सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इंडिया को भी उसमें इनवाइट किया जा रहा है कि आप भी आ जाइए. सो दिस इज इंडिकेटिंग द इंक्रीजिंग स्टेटस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो ये भी कहाँ होने वाली है? स्विट्जरलैंड में होने वाली है ये वाली मीटिंग. क्या? यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस. देखो ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली. यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो ये लुसर्न हुई है. लुसर्न है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में. देखो है क्या? यूक्रेन की पीस कॉन्फ्रेंस. लेकिन यूक्रेन में नहीं हो रही है, रसिया में नहीं हो रही है, वो हो रही है स्विट्जरलैंड में. ठीक है, नेक्स्ट एक इन्विटेशन और है इंडिया के पास में, वो है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग. इसका भी इन्विटेशन इंडिया के पास में आया है और ये ब्रिक्स की मीटिंग होगी कहाँ पर? रसिया की एक सिटी में, दैट इज निजी नोवगोरोड. इसमें इंडिया इसकी मीटिंग होने वाली है. तो आपको ध्यान रखना होगा जब ये मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी तो उसके बाद कि ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये हुई है रशिया में. बिकॉज अभी तो हमारे पास में इसमें करीब 2 मंथ के आसपास हमारे पास में है. अब इन सब की मीटिंग का जो रिस्पॉन्ड है वो जिन्होंने इन्वाइट किया है उन कंट्रीज को कब मिलेगा? जब इलेक्शन की रिजल्ट आ जाएंगे. क्योंकि ये तो नहीं पता ना कि कौन अभी नेक्स्ट टाइम कौन पीएम बनेगा, कौन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा. तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करने जाएगा. बट इस बात को ध्यान रख लीजिए कि इन मीटिंग्स की लोकेशन क्या है. G7 की मीटिंग इटली में होने वाली है और जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस है इसकी मीटिंग कहाँ पर हो रही है? स्विट्जरलैंड में. और ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर है? रसिया में. तो ये 3 पॉइंट आपको लर्न करके रखने हैं.
Arrest of criminal politicians does not affect free elections. Recently, you can connect this with the arrest of CM Kejriwal. What is the issue? Because in recent days, there are allegations against ED, Enforcement Directorate, that the arrest of CM is against the free and fair elections because the general elections are going on, and there are allegations against ED that ED has pre-planned to arrest CM Kejriwal before just before the elections, so he could not participate in election campaigns. ये उनके allegations थे ED के। तो यहाँ पर फिर बात ये निकल करके आई है, एक लॉजिकल बात भी हमको लगती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो ये कहा गया कि देखो, अरेस्टिंग ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस को हार्म करेंगे। बिकॉज कोई भी पर्सन हो, वो पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, अगर उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एलिगेशंस हैं तो उसको अरेस्ट अकॉर्डिंगली किया जाएगा। अब उसमें ऐसा प्लान तो नहीं किया जाएगा कि बिकॉज एक्स नाम का पर्सन आने वाले टाइम में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इसीलिए अभी उसको अरेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर ये कहना है कि क्या जो कॉमन मैन होता है जब उसकी अरेस्ट होती है, सपोज करो कि उसके बच्चे की शादी है, मैरिज है, क्या फिर उस पर ये आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि साहब रुक जाओ अभी 2 दिन 10 दिन रुक जाओ, बच्चे की शादी हो जाने दो फिर अरेस्ट कर लेना। सपोज करो मर्डर के केस में है, किसी फ्रॉड के केस में है, सपोज करो इसमें और भी कोई किसी पर्सन, सपोज करो एक फार्मर है ना, उसके साथ में कोई ऐसा क्रिमिनल केस हुआ और फार्मर का कंटेंशन है या उनकी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज अभी हमारे जो क्रॉप है उसकी अभी हमको रीपिंग करनी है, अभी हमको फसल काटनी है ना, तो प्लीज रुक जाइए, हमें को 10 दिन बाद अरेस्ट कर लेना। क्या जो अथॉरिटीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, क्या वो इस पर मान जाएंगी कि आपके गेहूं काटने हैं या आपको जो है बच्चे की शादी करनी, इस पर मान जाएंगी? तो नहीं। तो यहाँ पर सेम यही आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर ये अपने कंटेंशन दे रही है, अपने आर्गुमेंट दे रही है कि लोकसभा का इलेक्शन है, उससे पहले अरेस्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो सीएम है वो अब इलेक्शन के कैंपेन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल वहाँ यहाँ पर ये कहना है ईडी का या जो इंटेलेक्चुअल्स है कि पॉलिटिशियंस हु आर क्रिमिनल्स कैन नॉट एंजॉय द इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट मेयरली बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू कैंपेन इन द इलेक्शंस। तो ईडी ने ये कहा अपने 87 पेज के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा कि जो पॉलिटिशियंस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको केवल इस बात पर हम फ्री नहीं छोड़ सकते, उनको इम्यूनिटी नहीं दे सकते कि उनको इलेक्शन कैंपेन में जाना है। ठीक, ये उनका था। तो यहाँ पर एक भी कहा उन्होंने कि ट्रीटिंग अ पॉलिटिशियन डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी क्रिमिनल मींस अगर कोई कॉमन मैन है वो भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और कोई पॉलिटिशियन है बड़ा वाला और वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन के साथ में अगर हम डिफरेंटली ट्रीट उसको करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि आर्टिकल 14 का हम वायलेशन कर रहे हैं। कि आर्टिकल 14 भाई वो केवल मिलेगा किसको, बस जो पॉलिटिशियंस है। मींस फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ रह जाएगी, फिर तो पॉलिटिशियन को स्पेशल पावर मिलेगी और कॉमन मैन बेचारा अगर उसका जो एक बाइक का थोड़ा सा छोटा सा चालान भी है या कोई भी कॉमन पुलिस कांस्टेबल वगैरह आएगा उसको जो चाटा मारेगा, अरेस्ट कर लेगा। लेकिन जो हाईली रिच क्लास होगी, पॉलिटिशियन होंगे, उनके लिए फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गए। हम बाकी आप भी बता सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ ये क्या इसका वायलेशन होगा अगर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अगर इस तरीके की इम्यूनिटी दे दी जाए। तो आपके क्या आइडियाज हैं, आप प्लीज शेयर कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पिटीशन टू एंड कॉलेजियम एंड टू रिवाइज एनजेएसी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई। पिटीशन ने क्या कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए और जो एनजेएसी है इसको फिर से क्या कर दिया जाए, इसको रिवाइव कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है तो सबसे पहले वो जाती है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं। ये प्रोसेस सारी जगह पर ही फॉलो होती है, किसी भी कोर्ट में आप चले जाएंगे तो यहाँ जब देखेंगे तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब थे, उन्होंने बोल दिया नहीं। क्यों, क्या बोल दिया उन्होंने कहा कि भाई जब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मैटर को डिसाइड कर चुका है और इससे क्या होगा, इससे होगा बस वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
जब सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग में हैं, तो क्यों उस केस को हम बार बार लेकर के आए, विच केस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और एक बार नहीं, दो बार सुप्रीम कोर्ट हमने कमेंट भी दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि इट इज दिस पिटीशन, जो पिटीशन दी थी, इट इज रिजेक्टेड टू प्रिवेंट नीडलेस वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम एंड एनर्जी। बोले ऐसे विषय पर जो पहले डिसाइड हो चुके हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार है कौन है, पुनीत सहगल। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम हैड ऑलरेडी बीन अपहेल्ड, मींस इसको वैलिड बताया और एनजेसी को पहले ही 2015 में ही फिनिश कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था। उसके बाद 2018 में फिर एक पिटीशन आई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि जो एनजेसी है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉलेजियम सिस्टम ही अपहेल्ड रहेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना था कि जब ये टॉपिक, ये इशू डिसाइड हो चुका है तो बार बार इसको कोर्ट में लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास में इशू है डू द रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आज जो है कोइंसिडेंटली सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। डू द रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू कम्युनिटी, आस्क द सुप्रीम कोर्ट। इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्या, कि अभी एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट की अभी हियरिंग कर रही है। किस केस में, वो केस है आर्टिकल 39 का। आर्टिकल 39 के रिगार्डिंग में जो है जब प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें एक मैटर चल रहा है कि वेदर द प्राइवेटली ऑन्ड रिसोर्सेज could be considered as material resources of the community। सपोज कोई पर्सन है एक्स, इसके पास में कोई अपनी कार है, तो क्या एक टाइम पर गवर्नमेंट इसको इस पर्सन से स्नैच करके, छीन करके, कॉन्फिस्केट करके इसको पब्लिक में बांट सकती है, पब्लिक की प्रॉपर्टी इसको बना सकती है? क्या इंडिविजुअल के पास में लैंड है वो इंडिविजुअल की ना होकर के क्या वो कम्युनिटी की है? कुछ ऐसा ही इश्यू इस प्रोसीडिंग में चल रहा है। So you have to also know the basic point regarding Article 39. Article 39 क्या कहता है? ये कहता है कि जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसीज वगैरह कुछ इस तरीके से बनाएगा, डायरेक्ट पॉलिसी इन सच अ वे दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका जो कंट्रोल है वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट सर्व द कॉमन गुड। तो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वो कॉमन गुड को प्रोमोट करें। मींस जो रिसोर्सेज हैं उसमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन में देयर शुड नॉट बी इम्बैलेंस। ऐसा ना हो कि सोसाइटी के फ्यू पर्सन, फ्यू इंडिविजुअल्स उनके पास में मींस बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो और बाकी जो लार्जर सोसाइटी है उसके पास में रिसोर्सेज बहुत कम हो। मींस ऐसा ना हो कि कंट्री के 10 लोग ऐसे हों उनके पास में कंट्रीज के, हमारे इंडिया के 90% रिसोर्सेज, बाकी जो 90% पॉपुलेशन है उसके पास में बस 10% रिसोर्सेज रह जाए। मींस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 का ये कहना है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनका क्या ना हो, कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स ना हो। ठीक है, तो इन दिस हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आप लेकर के जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन भी पूछता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यूनियन गवर्नमेंट को वेदर ऑल मटेरियल रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल ह्यूमन लेबर कॉन्स्टिट्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब किसी इंडिविजुअल ह्यूमन की लेबर से ही तो बने हैं, तो क्या सारे के सारे अब वो स्टेट के हो जाएंगे? क्या वो सारे के सारे कम्युनिटी के हो जाएंगे? मीन्स कोई भी ए पर्सन अगर बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने लिए प्रॉपर्टी अरेंज कर रहा है तो क्या वो प्रॉपर्टी एक टाइम पर आकर के पूरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा ही इसी इश्यू पर एक कमेंट आया था जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, दैट इज सैम पित्रोदा। यूएसए में बैठ करके उन्होंने ये कहा कि भाई देखो यूएसए में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है ए और इसके पास में अगर 1 लाख रुपीज हैं और इसकी अगर डेथ हो जाती है तो इसमें से 45,000 रुपीज मिलेंगे उसके बेटे को, सन को, बचे हुए 55,000 रुपीज दे दिए जाएंगे गवर्नमेंट को। ये ऐसा बोला, ऐसा चल रहा है। तो इंडिया में भी हमको वैसा ही कर देना चाहिए। और इस बयान को, इस जो है
स्पीच को लेकर के इंडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया और जो इलेक्शंस बड़े इजीली चल रहे थे उसमें कोई गर्मी नहीं थी, हॉटनेस नहीं थी, तो अब वो इलेक्शन क्या हो गए, वार्म अप हो गए, क्योंकि इस मैटर को भी अपोजिशन पार्टीज या जो अदर पार्टीज हैं या अभी जो सत्ता में है उन्होंने भी इसको इश्यू बना लिया कि भाई गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, तो ऐसे ही इश्यू बन जाते हैं। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर, रिप्रेजेंटिंग अब यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल, क्या नाम है उनका, आर वेंकट रमनी। तो लर्न कर लेना कि अटॉर्नी जनरल अभी करंटली कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो दैट इज आर वेंकट रमनी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ऑल थिंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड विच आर अवेलेबल एंड मेड अवेलेबल बाय ह्यूमन इंटरेक्शन और एंगेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। बड़ा इन्होंने भयंकर से बात ये बोल दी है इस समय। ठीक है, इससे आई थिंक वर्ल्ड लेवल पर जितने भी इंटेलेक्चुअल होंगे वो बहुत ज्यादा इसको समर्थन तो नहीं करेंगे, सपोर्ट। क्यों कि अगर देखो, इन्होंने ये कहा कि कोई भी रिसोर्स अगर वो ह्यूमन इंटरेक्शन से उसका जन्म हुआ है, ह्यूमन के एंगेजमेंट से उसका रिजल्ट हुआ है, तो वो सब किसका होगा, कम्युनिटी का होगा। तो भैया आपने तो वही बात बोल दी जो कम्युनिस्ट बोलते चले आ रहे हैं, कार्ल मार्क्स बोलते चले आ रहे हैं इतने दिन से कि भाई ये अर्थ जो है, ये अर्थ का जितना भी इसमें रिसोर्सेस है वो सब पूरी कम्युनिटी के हैं, इंडिविजुअल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो कार्ल मार्क्स तो यहाँ तक कहता था कि ना तो किसी का इंडिविजुअल घर होना चाहिए, ना इंडिविजुअल जो है लैंड होनी चाहिए, ना इंडिविजुअल किसी के पास में कार होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया। तो उन्होंने क्या कि वंस रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, अगर कोई भी रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में आ गए, गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, तो अब उन पर ये क्वेश्चन ही मत पूछो कि उनकी ऑनरशिप और कंट्रोल किसका है, बोलो ये तो फिर खत्म ही हो गया क्योंकि सब कुछ स्टेट का है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा फिर उनसे बदले में। क्या कहा, उन्होंने पूछा कि इफ भाई आप जब ऐसे स्पीच दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट दे रहे हो, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो, मींस सीजेआई कह रहे हैं किससे, अटॉर्नी जनरल से, कि भाई क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट लेबर वाज द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि इंडिविजुअल जो कुछ भी क्रिएट कर रहा है, क्या एवरीथिंग बिलोंग टू द कम्युनिटी। दूसरा, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया अपना, जज साहब ने क्या कहा कि सो आई बिल्ड अ हाउस यूजिंग माय ओन इनकम, इज इट द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो मैंने अपनी इनकम से अपना हाउस बनाया, घर बनाया, तो क्या ये बताओ क्या ये पूरी कम्युनिटी का है। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, आई ओन अ कार, इज इट द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि मेरे पास जो अपनी कार है क्या वो पूरी कम्युनिटी का रिसोर्स है। इज देयर नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, वहीं एम वेंकट रमनी रिस्पोंडेड, उन्होंने कहा कि इफ इट गोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। कोई भी चीज जिसका कंजम्पशन की बात प्राइवेट से बाहर निकल जाए, प्राइवेट बाउंड्री से बाहर निकल जाए, प्राइवेट का ना रहे, वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर तो वो कम्युनिटी का रिसोर्स है। हालांकि इस पर अभी कोई जजमेंट नहीं आया है, बस ये प्रोसीडिंग्स है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है हम सोच सकते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं वो कहाँ तक कम्युनिटी के हो सकते हैं और कहाँ तक वो जो है इंडिविजुअल के हो सकते हैं। तो इन सच केसेस you can find out your own ideas, opinions and you can share your opinion that individual की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि क्या गवर्नमेंट को, स्टेट को ये राइट होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को ले और कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या ऐसा होना चाहिए, आप बताइए अपने कमेंट्स में। सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू एंड टुडे सेशन, सो बाय बाय, टेक केयर।